تیمور کی سلطنت کے شمالی حصوں کے حاکم قتلق اور ایدکو سرائے شہر میں جمع ہوئے اور ویٹولٹ کے خلاف دونوں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف ویٹولٹ بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے لیتھوانیا کے ایک مضبوط اور جرار لشکر کے علاوہ پولینڈ کے لشکر کو بھی اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ پولینڈ کا حاکم اس کا بھائی تھا۔ ایسا کرنے کے بعد ویٹولٹ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کا اسے یہ فائدہ ہوا کہ یورپ کے مختلف ممالک کے تقریباً 500 نواب، سردار اور جنرل بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اس صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے ویٹولٹ کے ساتھ آ ملے تھے۔ اس دوران تیمور کے حکم کے مطابق قتلق نے ویٹولٹ سے ترکمنش کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ ویٹولٹ نے اس خط کا جواب یوں دیا کہ اپنے اس انگنت اور طوفانی لشکر کے ساتھ اس نے سیلاب کی تند ریلے کی طرح ایدکو اور قتلق خان کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر دی تھی۔ قتلق اور ایدکو ایک روز سرائے شہر میں اکٹھے بیٹھے ویٹولٹ کی اس پیش قدمی کے خلاف تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ قتلق کا ایک محافظ اندر آیا اور اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، ویٹولٹ کا ایک قاصد آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ قتلق نے بے تابی اور بے چینی میں کہا، اسے فوراً اندر لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ ویٹولٹ کے قاصد کو لے کر اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی قتلق نے بھاری اور گونجدار آواز میں پوچھا، تم ویٹولٹ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس قاصد نے بانس کے خول کے اندر سے ویٹولٹ کا کاغذ پر لکھا ہوا پیغام نکالا اور قتلق کو تھما دیا۔ قتلق نے پڑھا لکھا تھا، خدا نے مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں کے خلاف میں صلیبی جنگ کا اعلان کر چکا ہوں، اور اس اعلان کے جواب میں مجھے ایسی عسکری تقویت ملی ہے جس کا تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے سکوں پر لیتھوانیا کا ٹھپا لگاؤ۔ میں تمہیں یہ بھی اطلاع کر دوں کہ میرے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے فضاؤں کے اندر اڑتا ہوا بیکنہ ٹڈی دل۔ جس طرح کوئی اس ٹڈی دل کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح تم لوگ میرے لشکر کی عددی حالت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ میں ایک بے روک آندھی، اٹل طوفان اور بہا لے جانے والے سیلاب کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں۔ اے قتلق خان، اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ میرا بیٹا اور میرا ماتحت بن کر رہو یا پھر میرا غلام بننا قبول کر لو۔ جو بھی صورت تم اختیار کرو، میں اسی کے لیے تیار ہوں۔ اور اے قتلق خان، تم اگر اپنے سارے حمایتیوں کو اپنے ساتھ ملا لو تب بھی میرے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے اور میری غلامی سے بچ نہ سکو گے۔ اگر تمہارا جواب مثبت ہوا تو تمہاری بہتری، اور اگر یہ جواب نفی میں ہوا تو اے قتلق خان، میں زمین کے آخری کناروں تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ اے قتلق خان، میں دریا ڈینیپور کو عبور کرنے کے بعد 50 میل تمہاری سرزمین کی طرف بڑھنے کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہوں۔ یہیں پر میں اپنے قاصد کی واپسی کا انتظار کروں گا، اور اے قتلق خان، یہیں میں تمہاری قسمت اور مقدر کے بگاڑنے اور سنوارنے کا بھی فیصلہ کروں گا۔ ویٹولٹ کا خط پڑھنے کے بعد قتلق نے وہ خط اپنے قریب بیٹھے تیمور کے دوسرے حاکم ایدکو کو تھما دیا۔ ایدکو نے وہ خط پڑھا، پھر اس نے ویٹولٹ کے قاصد کو مخاطب کر کے کہا، اے قاصد، تم 2-1 روز یہاں رکو، ہم آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ویٹولٹ کے نام تمہیں اپنا جواب دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایدکو نے وہاں کھڑے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ قاصد کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش اور کھانے کا انتظام کرے۔ ایک محافظ آگے بڑھا اور ویٹولٹ کے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس قاصد کے جانے کے بعد قتلق نے احتجاج کرنے کے انداز میں ایدکو سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس قاصد کو صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہوتا کہ ہم عنقریب اپنے عساکر کے ساتھ حرکت میں آ رہے ہیں اور ویٹولٹ کے ساتھ وہی معاملہ طے کریں گے جہاں اس نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ایدکو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابھی جوان ہو، اس لیے تم سے ایسے ہی جذباتی فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے، اور اسی بنا پر ویٹولٹ نے تمہیں اپنا بیٹا بنانے کی پیشکش کی ہے، جبکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میں ویٹولٹ کو اپنا بیٹا کہہ سکتا ہوں۔ سو قتلق خان، میں نے درست فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ مجھے امیر تیمور کے جنرل نور الدین اور اس کے لشکر کا انتظار ہے، اور سنا گیا کہ نور الدین ایک بلا کا زیرک جرنیل اور طاقتور جوان ہے۔ اس نور الدین کی آمد تک ہمیں ویٹولٹ کے ساتھ اپنے مسائل کو الجھا کر رکھنا چاہیے، اور جب نور الدین یہاں پہنچ گیا تو پھر اسی روز ویٹولٹ کے خلاف ہم کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اے قتلق، میں نے سن رکھا ہے امیر تیمور کا یہ نور الدین نام کا جرنیل۔ ایدکو کہتے کہتے خاموش ہو گئے کیونکہ ایک محافظ تیزی سے اندر آیا اور قتلق کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے آقا، باہر ہمارا ایک مخبر آیا اور یہ بتاتا ہے کہ امیر تیمور کا جنرل نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچا ہے اور شہر کے جنوبی حصے میں خیمہ زن ہو رہا ہے۔ قابل اس کے کہ قتل کچھ کہتا ہے۔ ایدکو فوراً کھڑا ہوا اور کہا، اے قتلق میرے عزیز، مجھے جس کا انتظار تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ باخدا یہ نور الدین بڑا نیک بخت جرنیل ہے۔ ادھر میں نے اس کا ذکر کیا اور ادھر مخبر نے اطلاع آن کی کہ نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے جنوب میں خیمہ زن ہو رہا ہے۔ اے قتلق میرے عزیز، اٹھو اور نور الدین کا استقبال کرے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ویٹولٹ سے نمٹنے کے لیے ہماری بہترین رہنمائی کرے گا۔ اے قتلق، یہ بھی سن رکھو کہ میں سمجھتا ہوں قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ جواب کے لیے میں نے ویٹولٹ کے سفیر سے 2-1 روز کا وعدہ کیا ہے، اور نور الدین کے آنے پر ہم قاصد کو مناسب جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔
कतलक और ऐदको जब शहर के जुनूब में आए तो उन्होंने देखा वहां वाकई नूरुद्दीन का लश्कर खैमजन हो रहा था। कतलक और ऐदको एक ऐसी जगह आ खड़े हुए जहाँ चंद जवान खैमा नस्ब कर रहे थे। ऐदको ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ए अजीम कौम के फर्जंदो, मैं ऐदको हूँ और मेरे साथ ये कतलक खान है। क्या तुम हमारी रहनुमाई करोगे कि तुम्हारे अमीर नूरुद्दीन कहाँ है? इनमें से जो जवान बैठे हुए थे वो ऐदको और कतलक का नाम सुनकर एहतरामन उठ खड़े हुए। फिर उनमें से एक ने कहा, आइए मैं आपको अमीर नूरुद्दीन के पास ले चलता हूँ। ऐदको और कतलक खान दोनों खामोशी से इस जवान के साथ हो लिए। नस्ब होते खेमों के अंदर थोड़ा सा आगे जाकर एक जगह वो रुक गए। इनके सामने ही नूरुद्दीन चंद जवानों के साथ मिलकर अपना खैमा नस्ब कर रहा था और इसके दाएं तरफ यूग्रीन भी कुछ जवानों को अपना खैमा नस्ब करने में मदद दे रहा था, जबकि नूरुद्दीन और यूग्रीन के दरमियान जहाँ इनके घोड़े खड़े थे वहाँ नायसा खड़ी नूरुद्दीन को आम जवानों के साथ काम करते देख रही थी। इस जवान ने ऐदको और कतलक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐ साहिबो, वो सामने दराज का जवान जो इस वक्त खैमे के तनाब को खोटे के साथ बांध रहे हैं वही नूरुद्दीन है। इनके दाएं तरफ जो जवानों को खैमा नस्ब करने में मदद दे रहा है वो वेटुलट का जनरल यूग्रीन है। इस यूग्रीन की एक बेटी है जिसे वेटुलट बेआबरू करने की कोशिश की थी, जिसकी बिना पर यूग्रीन ने हमारे यहाँ पनाह ले ली है। यह यूग्रीन हमारे लश्कर में इसलिए शामिल हुआ है कि इस जंग में वो अपनी आंखों से वेटुलट की बेबसी और लाचारगी का नजारा करे और इन दोनों के दरमियान मर्दाना जंगी लिबास में यूग्रीन की वही नायसा नाम की बेटी खड़ी है, जिसकी वजह से यूग्रीन को वेटुलट के खिलाफ बगावत करके हमारे यहाँ पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा था। अगर आप दोनों साहिब कहें तो मैं आगे जाकर अमीर को आपके आने की इत्तला कर दूं। ऐदको ने एक अकीदत और इरादतमंदी से कहा, ऐसा अमीर जो अपने लश्करों के साथ हर काम करते हुए आप महसूस न करता हो, इसे हम क्यों जहमत दे के वो अपना काम छोड़कर हमारा इस्तकबाल करे? हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद आगे बढ़कर ऐसे अमीर को अकीदत भरा सलाम कहें। इसके साथ ही ऐदको ने अपनी रहनुमाई करने वाले जवान को मुखातिब करके कहा, ए अजीज, तेरा शुक्रिया कि तूने यहाँ तक हमारी रहनुमाई की और इसके अलावा तूने अमीर नूरुद्दीन के अलावा वेटुलट के जनरल यूग्रीन और इसकी बेटी की भी निशानदेही कर दी। अब तुम जाओ, हम दोनों अब खुद ही अमीर नूरुद्दीन से मिल लेते हैं। वो जवान वापस लौट गया। ऐदको और कतलक आगे बढ़े और उस जगह जा खड़े हुए जहाँ पर नूरुद्दीन काम में मसरूफ था। नूरुद्दीन ने भी इन्हें अपनी तरफ आते हुए गौर से देखा था। नूरुद्दीन के पास खड़े हुए ऐदको और कतलक ने पहले बारी बारी सलाम कहा। साथ ही ऐदको ने बुलंद आवाज में कहा, ए अमीर नूरुद्दीन, मैं ऐदको हूँ और मेरे साथ ये कतलक है। हम दोनों आपको इस शहर में आने पर खुशामदीद कहते हैं। नूरुद्दीन उठ खड़ा हुआ और इन दोनों को गले लगाकर वो बड़ी गर्मजोशी से मिला। इतनी देर तक यूग्रीन भी इनके नजदीक आ गया था। इन दोनों के बारी बारी इससे भी मुसाफा किया। फिर ऐदको ने यूग्रीन को मुखातिब करके कहा, अमीर नूरुद्दीन के लश्कर का एक जवान हमारी रहनुमाई करता हुआ यहाँ तक लाया है और वो हमें आपके और आपकी बेटी से मुतल्लिक भी इत्तलात फराहम कर चुका है। हम आप दोनों बाप बेटी को भी इस शहर में खुशामदीद कहते हैं। फिर ऐदको और कतलक दोनों नूरुद्दीन की तरफ मुड़े और इस बार कतलक ने नूरुद्दीन को मुखातिब करके कहा, ए अमीर नूरुद्दीन, आप इंतहाई मुनासिब वक्त पर अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंचे हैं। नूरुद्दीन ने तेज मगर फिक्रगीर निगाहों से कतलक की तरफ देखा और तजस्सुस भरे लहजे में इसने पूछा, क्या इन दिनों यहाँ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया है? कतलक ने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लें। वेटुलट का एक कासिद इसका खत हमारी तरफ लेकर आया है। हमने अभी इस खत का जवाब नहीं दिया क्योंकि ये कासिद आज ही थोड़ी देर कबल आया है और हमने इसे 2-1 रोज रहने को कहा है। इसके साथ ही कतलक ने नूरुद्दीन को वेटुलट का खत निकाल कर थमाते हुए कहा, आप वेटुलट के इस खत को पढ़ लें और फिर हमारी रहनुमाई करें कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी रहनुमाई में हम कोई बेहतर और सूदमंद ही कदम उठाएंगे। नूरुद्दीन ने खत ले लिया। फिर वो वेटुलट का खत पढ़ रहा था। वेटुलट का खत पढ़ने के बाद नूरुद्दीन ने वो खत कतलक को वापस थमा दिया और कहा, वेटुलट ने हमारे खिलाफ सलीबी जंग का ऐलान कर दिया है और इसके लिए हम लब्बैक कहते हैं। अपने लश्कर की कुव्वत और तादाद के भरोसे पर जिस नौ का खत इसने में लिखा है ये इसकी अपनी सोच और समझ का बाइस है, लेकिन अपनी समझ और बूझ के मुताबिक जब हम इसके खिलाफ हरकत में आएंगे तो अपनी हर चौकड़ी भूलकर इस बात का इकरार करेगा कि रूस और पोलैंड से जंग करना आसान है, लेकिन हम तातारी मुसलमानों से इसके लिए बाइस जिल्लत और रुसवाई है। ऐदको और कतलक, मेरे अजीजों, अभी और इसी वक्त वेटुलट के कासिद को वापस कर दो। इसे कोई तहरीरी जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसे जुबानी कह दो कि वेटुलट पर जाकर इंकिशाफ करे कि जिस मैदान में इसने पड़ाव किया है हम अपनी खून बरसाती तलवारों और जहरीले नेजों के साथ वहीं पर आकर इसका होलनाक इस्तकबाल करेंगे। जब नूरुद्दीन खामोशी हो तो कतलक फिर बोला, है अमीर, अब मैं जाता हूँ और आपके लश्कर के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद हम आपके पास बैठकर यहाँ से कूच और वेटुलट के खिलाफ जंग करने का लाहेमल तय करेंगे। नूरुद्दीन ने अपने लश्कर के जुनूबी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग जरा उधर देखो, मेरे लश्कर के लिए खाना तैयार हो रहा है, इसके लिए तुम लोगों को जहमत करने की जरूरत नहीं।
ऐद को और कतलक ने जब जनूबी हिस्से की तरफ देखा तो वाकई वहाँ बहुत से लश्करी खाना तैयार करने में मसरूफ थे। नूरुद्दीन फिर बोला, जहाँ तक यहाँ से कूच करने का सवाल है और वेटुलेट के साथ जंग करने का लाएमल तय करना है, तो इससे मुतल्लिक भी हमें आपस में ज्यादा सलाह मशवरे और बहस की जरूरत पेश न आएगी। हम कल सुबह ही यहाँ से इन सरजमीनों की तरफ कूच करेंगे जहाँ वेटुलेट ने पड़ाव किया हुआ है, और अगर आप दोनों इजाजत दें तो अपने लश्कर को कलब के तौर पर इस्तेमाल करूंगा ताकि वेटुलेट का लश्कर ज्यादा दबाव मेरे लश्कर पर पड़े और आप दोनों के लश्कर जंग में मेमना और मैसरा का किरदार अदा करें। एडको ने बड़ी इंकिसारी से कहा, ए अमीर, इसके लिए आप हमारी इजाजत क्यों तलब करते हैं? बाखुदा ये जंग आपके नुक्ता नजर के मुताबिक लड़ी जाएगी और आप इस जंग में हमारे मुत्तहिदा लश्करों के सालार आला होंगे। इस बार नूरुद्दीन ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ए मेरे अजीजों, अगर ये बात है तो फिर सुनो, कल फजर की नमाज के बाद यहाँ से कूच होगा। आप दोनों अपने लश्करों के साथ शहर के इसी जनूबी हिस्से की तरफ आ जाएं, फिर एक मुत्तहिदा लश्कर की सूरत में हम वेटुलेट की तरफ कूच करेंगे। ए मेरे अजीजों, मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि हम हर मीठे नक्श को चमकाएंगे, मज़दा मायूसी में डूबे खाक बसर गुलिस्तानों और बेरोनक बस्तियों की शगुफ्तगी और दिलकशी को बेदार करेंगे। अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए नूरुद्दीन फिर कह रहा था, ए मेरे रफीका ने कार, वेटुलेट ने बेशक हमारे खिलाफ सलीबी जंग का ऐलान करके अपनी अस्करी हैसियत में खूब इजाफा कर लिया है। इसके बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम अपने दीन को मुखलिस करके अपने रब का नाम लेकर इस मैदान में उतरें तो हमारा रब हमारी मदद करेगा और हम वेटुलेट और इसके अनगिनत लश्करियों को तबाही और बर्बादी के दौराहे, बदकारी और फिस्क और नेकी और ताअत के फर्क, हुस्न अखलाक और बद अखलाकी के इम्तियाज और खुदा परस्ती और दहरियत की तफरीक पर ला खड़ा करेंगे। इस दौरान नूरुद्दीन और युगरीन दोनों के खैमे नस्ब हो गए थे। लिहाजा नूरुद्दीन ने युगरीन को मुखातिब करके कहा, मेरे मोहतरम, आप अपने खैमे में जाकर आराम करें, मैं जरा अपने दोनों रफीकों के साथ तवील गुफ्तगू करूंगा। युगरीन वहां से हटा और अपनी बेटी नायसा को लेकर अपने खैमे में चला गया था। इसके जाने के बाद नूरुद्दीन ने ऐद को और कतलक से कहा, आइए मेरे खैमे में बैठकर इत्मीनान से गुफ्तगू करते हैं, आप दोनों शाम का खाना भी यही मेरे साथ ही खाएंगे। फिर नूरुद्दीन इन दोनों को लेकर अपने खैमे में दाखिल हो गया था। दूसरे रोज नूरुद्दीन, ऐड को और कतलक ने अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ वेटुलेट की तरफ कूच किया। बरकत अफजारी से आगे बढ़ता हुआ नूरुद्दीन अपने इस मुत्तहिदा लश्कर के साथ दरिया डेनपर से 50 मील पहले इस जगह पहुंचा जहां कोहस्तानों से घिरी हुई एक वसी और इस वादी के अंदर वेटुलेट अपने लश्कर के साथ खैमाजन था और वेटुलेट के लश्कर के ऐन सामने नूरुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ खैमाजन हुआ था। नूरुद्दीन को वहां खैमाजन हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि वो ऐद को और कतलक के साथ अपने खैमे से बाहर महवे गुफ्तगू था कि इसका एक सिपाही ऐसे जवान को अपने साथ लाया जो अपनी शक्ल शबाहत और लिबास हुली से सलीबी जंगजू लगता था। करीब आकर नूरुद्दीन के इस लश्करी ने नूरुद्दीन को मुखातिब करके कहा, ए अमीर, दुश्मन की सिपा सलार वेटुलेट की तरफ से ये सलीबी जवान आपके लिए कोई पैगाम लाया है। नूरुद्दीन ने बराह रास्त इस कासिद को मुखातिब करके पूछा, तुम अपने सालार वेटुलेट की तरफ से हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो? कासिद चंद कदम आगे बढ़कर नूरुद्दीन के करीब हुआ और बोला, हमारे सालार वेटुलेट ने मुझे इस खातिर इस तरफ रवाना किया है कि मैं आप लोगों से जानूं कि क्या जंग की इब्तिदा से पहले आप लोग बाहमी गुफ्तगू पर आमादा है। इस तरह हो सकता है कि अमन की कोई राह निकल आए और सरों पर मंडलाती हुई होलनाक जंग टल जाए। नूरुद्दीन ने बिला तवक्कुफ कहा, वेटुलेट अगर खुलूस नियत से ऐसा चाहता है तो हम गुफ्तगू शनीद के लिए भी तैयार हैं। इस कासिद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर दोनों लश्करों के दरमियानी खुले मैदान में खैमा नस्ब किया जाए। इस खैमे में आप अपने साथ अपने 5 सालार ले आए और 5 ही हमारे सालार वेटुलेट भी अपने साथ मुशीर लेकर आएंगे। शायद इस बाहमी गुफ्तगू के बेहतर नताइज ही नमूदार हो जाए। नूरुद्दीन ने कहा, तुम फिर जाओ, जब मैदान के वस्त में ये खैमा नस्ब हो गया तो मैं अपने 5 मशीरों के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। जब वो कासिद चला गया, उसके जाने की थोड़ी देर बाद दोनों असाकिर के दरमियानी हिस्से में एक बड़ा खैमा नस्ब होना शुरू हो गया था। जब ये खैमा नस्ब हो चुका तो वेटुलेट अपने 5 मुशीरों के साथ वहां पहुंचा, जबकि नूरुद्दीन भी अपने 5 मुशीरों के साथ इस खैमे में दाखिल हुआ। इस खैमे के अंदर पहले दोनों तरफ का तारुफ कराया गया। नूरुद्दीन के साथ कतलक और एडको के अलावा 3 सालार और भी थे, जबकि वेटुलेट के साथ ग्रैंड मास्टर ऑफ ट्यूटाक नाइटस के अलावा कराकू का हाकिम असमालसक और ग्लेशिया के जर्नेलों के अलावा लिथुआनिया के एक पादरी भी था जो इस सलीबी जंग में लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने का काम करता था। गुफ्तगू का आगाज वेटुलेट ने करते हुए नूरुद्दीन को मुखातिब करके कहा, शुमाली सरजमीनों की ये वसी खित्ते जिन पर इन दिनों तुम काबिज हो, ये तुम लोगों ने जबरदस्ती हथिया लिए हैं और इन सरजमीनों का हाकिम तो कतवश मेरे पास पना ले चुका है। लिहाजा तुम लोगों से मेरा अव्वलीन मुतालबा यह है कि तुम लोग इन इलाकों को खाली कर दो कि मैं दोबारा तो कतमश को इन इलाकों का हाकिम बना दूं, और अगर तुम ऐसा ना करोगे तो इंजाम तुम लोगों के सामने इसी रज़्मगाह में होगा। नूरुद्दीन ने गौर से वेटुलेट की तरफ देखा और कहा, ए वेटुलेट,
इन इलाकों का तनाज़ा मुसलमानों का बाहमी मसला है, इसलिए कि तो कतमश मुसलमान है। अगर वो भागकर तुम्हारे पास आने की हिमाकत कर चुका है तो क्या हम इस हिमाकत के जवाब में तुम्हें अपना सालिस व हाकिम मान ले? हरगिज नहीं। ए वेटलॉर्ड, सुन रखो, हम खूब जानते हैं कि तू कतमश की आड़ में तुम इन इलाकों पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा करने की हरगिज इजाजत ना देंगे। और ए वेटलॉर्ड, आगाह रहो कि हम इस अमर से भी बाखबर हैं कि तुम हमेशा मुसलमानों को बाहम लड़ाकर फवायद हासिल करने वाले लोग हो, लेकिन यहाँ इस मैदान में तुम्हें फवायद कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिलेंगे। ए वेटलॉर्ड, ये मेरी बात अपने पल्ले बांध कर रखना कि हम जहाँ अपने अपनों के लिए नए अहद की बशारत, निदरत इजहार और आंधियों में जलने वाले चिराग हैं, और वहाँ हम अपने और अपने दीन के दुश्मनों के लिए सूखे खुश्क खार, ग़ुरूब शाम, ज़वाल शब और जुल्म व जबर की प्यास भी हैं। ए वेटलॉर्ड, हम जिस रज़्म में दाखिल होते हैं इसे अपने दुश्मनों के चूंटियों से घिरे हुए वीराने जैसा बनाकर रख देते हैं। ए वेटलॉर्ड, आदमी बेसबात है और ये जिंदगी एक रात की मानित है, जाने कब गुजर जाए। लिहाजा ये जंग अगर टल सकती है तो टाल दो, पर हमसे ऐसी कोई तवक्को न रखना कि हम तुम्हारे सामने दब जाएंगे या इन सरजमीनों को तुम्हारे हवाले कर देंगे। अगर हमारे साथ अमन के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए हम सितारों का सलाम और बहादुरों का पैगाम बनकर रहेंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें अपने लिए सीने के दहकते दाग, मौत का नजराना, जहर का पैमाना और मौजो गर्दाबो तलातुम जैसा पाओगे। ए वेटलॉर्ड, मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त जबकि जंग शुरू नहीं हुई तुम अपने लिए फतह की नीलम परियों के हसीन ख्वाब देख रहे होगे, लेकिन जब हम रक्स करते शरारों की तरह हमलावर होंगे तो तुम चाहोगे कि तुम्हारी रूहों को तुम्हारे जिस्मों के सर्द खानों से निजात मिल जाए। नूरुद्दीन की इस गुफ्तगू पर ट्यूटांक के नाइटों का ग्रैंड मास्टर भड़क उठा, अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया और आग बरसाती आंखों से इसने नूरुद्दीन की तरफ देखते हुए खोलते और उबाल खाते हुए लहजे में कहा, तुम अपनी हुदूद से बाहर आकर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हो। हम तुम्हारे मुकाबले पर वो लोग हैं जो तुम लोगों के खून के कतरे कतरे में तूफाने बेकरार फेर कर रख देंगे। और सुन रखो, मैं ट्यूटांक का ग्रैंड मास्टर हूँ, और ग्रैंड मास्टर उसे बनाया जाता है जो तलवार के फन में अपना सानी न रखता हो। सो एक ग्रैंड मास्टर की हैसियत से मैं तुम लोगों को कबल अज़ वक्त तंबीह करता हूँ कि इस रज़्म गाह में हम तुम्हारी जापसंदी को भटकते हुए कारवानों जैसा कर देंगे। बेहतर यही है कि वेटलॉर्ड ने अमन उसूलों की जो शरायत पेश किए ने तस्लीम कर लो, वरना हमारे साथ जंग के बाद तुम्हारी हालत उस बेबस और लाचार इंसान की सी होगी जिसकी कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश न रही हो। ग्रैंड मास्टर की इस लाफजनी पर नूरुद्दीन का चेहरा सुर्ख हो गया था। फिर इसने ग्रैंड मास्टर से कहा, ग्रैंड मास्टर होना हमारी निगाहों में कोई खास इज्जत और तौकीर का मुकाम नहीं है। ग्रैंड मास्टर का जो तुमने ये मतलब बताया है कि वो तेगजनी में अपनी मिसाल नहीं रखता, तो ये एक अहमकाना ख्याल है, वरना तुम जानते हो माजी की सलीबी जंगों में गुमनाम मुसलमान मुजाहिद न सिर्फ नाइटों बल्कि इनके ग्रैंड मास्टरों को भी अपने पांव तले रोनते रहे हैं। ग्रैंड मास्टर भड़क उठा, ये झूठ और बहतान है। अगर तुम्हारे ऐसे ही जज्बात और ख्यालात हैं तो इस जंग से कबल मैं तुम्हें इनफरादी मुकाबले की दावत देता हूँ। नूरुद्दीन ने झट से कहा, और मैं इस इनफरादी मुकाबले की दावत को कबूल करता हूँ। अगर तुम ये दावत न देते तो थोड़ी देर तक मैं खुद ये चैलेंज करने वाला था। बहरहाल ए ग्रैंड मास्टर, इस जंग की इब्तदा से पहले मैं तुम्हारे इनफरादी मुकाबले का मौका जरूर दूंगा, और सुन रखो, इस मुकाबले के बाद तुम अपने आप को ग्रैंड मास्टर कहलवाना भूल जाओगे। वेटलॉर्ड ने इस बार नूरुद्दीन से पूछा, तो क्या तुम्हारी इस गुफ्तगू से हम ये समझ ले कि तुम हमारे साथ अमन सुलह की गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं हो? नूरुद्दीन अपनी जगह पर पहलू बदला और बोला, हम ऐसी सुलह क्यों कबूल करें जिसमें तुम हम पर शरायत थोपो? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हम तुमसे सुलह करना चाहते हैं बशर्ते कि लिथुआनिया के इलाका हमारे हवाले कर दो, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वेटलॉर्ड ने कहा, हरगिज नहीं। नूरुद्दीन गहरी तंज में बोला, तो फिर हमारा भी यही जवाब है कि हरगिज नहीं। वेटलॉर्ड अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, तो फिर अब कज़िया जंग से ही तय होगा। मैं समझता हूँ तुम ऐसे लोग हो जिन्हें मार कर सीधा करना पड़ेगा। वेटलॉर्ड इस खेमे से निकलने ही वाला था कि इस बार एडको ने से मुखातिब किया, ए वेटलॉर्ड, तुम्हें याद होगा तुमने गुज़श्ता दिनों एक खत तो कतलक की तरफ रवाना किया था, और इस खत में तुमने कतलक से मुतालबा किया था कि वो तुम्हारा बेटा या गुलाम बनकर रहे और अपने सिक्कों पर लिथुआनिया का ठप्पा लगवाए। तो ए वेटलॉर्ड, तुम उम्र में कतलक से बड़े हो, इसलिए तुमने इसे बेटा बनने का मशवरा दिया, लेकिन मैं तो तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। लिहाजा तुम्हारे इस खत के जवाब में तुमसे मुतालबा करता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो और लिथुआनिया के सिक्कों पर मेरा चेहरा कंधा कराओ। वेटलॉर्ड ने कोई जवाब न दिया और गुस्से में भरा हुआ वो इस खेमे से अपने साथियों के साथ चला गया। सुलह की ये कोशिश नाकाम हो गई और वेटलॉर्ड के अपने साथियों के साथ चले जाने के थोड़ी देर बाद वो खेमा भी उखाड़ लिया गया था जो सुलह की गुफ्तगू शनीद के लिए नस्ब किया गया था। और फिर चंद ही साथों के बाद ग्रैंड मास्टर पूरी तैयारी के साथ मुसल्लह हुआ और अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दोनों लश्करों के दरमियान आया और नूरुद्दीन का नाम लेकर इसने इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारा।
दूसरी तरफ नूरुद्दीन ने बाहर आने में कोई ताखीर न की थी, बल्कि जिस वक्त ग्रैंड मास्टर ने इसे पुकारा इसी वक्त अपने घोड़े को भगाता हुआ उस मैदान में नमूदार हो गया था। दोनों लश्करों ने अपनी अपनी सफेद दुरुस्त कर ली थी। नूरुद्दीन के मैदान में उतरने के बाद अब एटको और कतलक अपने मुत्तहिदा लश्कर के सामने खड़े थे। यू ग्रीन और नायसा भी दोनों बाप बेटी इस मौका पर लश्कर के एक तरफ पड़ाव के खैमों के पास खड़े। नायसा ने फिक्रमंदी में कहा, ए मेरे बाप, ये इस नूरुद्दीन ने ग्रैंड मास्टर से खुद मुकाबले की ठान कर क्या हिमाकत का मुजाहरा नहीं किया। मेरा दिल कहता है कि ज्यादा देर तक ग्रैंड मास्टर के सामने न ठहर सकेगा। इससे चाहिए था कि ग्रैंड मास्टर के मुकाबले में किसी और को भेजता, ताकि अगर वो मारा जाता तो इसके लश्कर पर बुरा असर न पड़ता। अब अगर इस इनफरादी मुकाबले में ग्रैंड मास्टर ने नूरुद्दीन का काम तमाम कर दिया तो इसके लश्कर पर इसके बुरे असरात होंगे और ग्रैंड मास्टर के हाथों नूरुद्दीन के मारे जाने पर वेटलट की कामयाबी और फतहमंदी यकीनी हो जाएगी। यू ग्रीन, जो लगातार मैदान में उतरने वाले नूरुद्दीन की तरफ देखे जा रहा था, अपना रुख इसने अपनी बेटी नायसा की तरफ किया और जवाब तलब लहजे में इसने कहा, ए मेरी बेटी, अगर इस मुकाबले में नूरुद्दीन गालिब रहा तो फिर? नायसा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये ग्रैंड मास्टर नाइटों के जिस गिरोह से ताल्लुक रखता है, इसका काम इंसानी जानों से खेलना है। यू ग्रीन फिर बोला, ए नायसा मेरी बेटी, तुम ये हकीकत भी अपने ज़हन में रखो कि माजी की सलीबी जंगों में बड़े बड़े नाइटों को मुसलमानों के आम और गुमनाम से मुजाहिदों ने अपने सामने ज़ेरे दस्त और तेग करके रख दिया। नायसा ने कोई जवाब न दिया और खामोश रही, क्योंकि नूरुद्दीन अपने घोड़े को भगाता हुआ ग्रैंड मास्टर के सामने जा खड़ा हुआ था और नायसा अपने बाप की गुफ्तगू का जवाब देने के बजाय इनकी तरफ गौर और इन्हिमाक से देखने लगी थी। जब नूरुद्दीन अपने घोड़े को हाँकता भगाता ग्रैंड मास्टर के करीब गया तो ग्रैंड मास्टर अपने घोड़े से नीचे कूद गया और नूरुद्दीन को मुखातिब करके इसने कहा, ए नूरुद्दीन, सुबह की इस गुफ्तगू शरीफ के दौरान इस खेमे में एडवर्ड से बातचीत करना सहल और आसान था, लेकिन यहाँ इस मैदान में मेरे साथ मुकाबला तुम्हारे दुश्वार और तकलीफ साबित होगा। नूरुद्दीन भी अपने घोड़े से कूदकर अपनी तलवार ढाल संभालते हुए इसने कहा, ए ग्रैंड मास्टर, अपनी जिंदगी में तेरे जैसे कूचागद कुत्ते मैंने काफी देखे हैं। ग्रैंड मास्टर ने नूरुद्दीन की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया और अपनी तलवार ढाल संभालकर इसने नूरुद्दीन पर हमला कर दिया था। नूरुद्दीन ने बड़ी आसानी के साथ ग्रैंड मास्टर का वार अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर कुछ देर तक नूरुद्दीन इस ग्रैंड मास्टर को हमलावर होने के मौके फराहम करता रहा और इसके वो वार इंतहाई मुहारत के साथ रोकता रहा। दोनों लश्कर इस मुकाबले को बड़ी खामोशी और जुस्तजू के आलम में देख रहे थे। ग्रैंड मास्टर अपनी जगह परेशान हो रहा था कि नूरुद्दीन जारहियत पर उतरे बगैर कैसे आसानी के साथ इसके हमलों पर अपना दिफा कर रहा था। नूरुद्दीन के यूं हमले रोकने के अंदाज में ही ग्रैंड मास्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि नूरुद्दीन कोई आम तेगज़न नहीं है। फिर भी अपनी बदहवासी छुपाने और अपनी धुंधली ख्वाहिशों की तकमील के लिए वो अंधाधुंध नूरुद्दीन पर वार किए जा रहा था। फिर अचानक नूरुद्दीन ने अपना रंग बदला और जोरदार तकबीर बुलंद की और फिर इस मैदान से बाहर दोनों लश्करों के जवानों ने देखा कि नूरुद्दीन की तलवार ग्रैंड मास्टर के शाने पर गिरी थी और ग्रैंड मास्टर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। नूरुद्दीन ने आगे बढ़कर जमीन पर गिरे हुए ग्रैंड मास्टर की छाती पर अपना पांव रखा और कहा, ए ग्रैंड मास्टर, यह तुम्हारी कुल शुजाअत और तेगज़नी की मुहारत जो काफी देर से तुम्हारे अंदर अहमकाना खोलन पैदा किए हुई थी। ए ग्रैंड मास्टर, मैं जरूर तुझे छोड़ देता और तेरी जा बख्शी कर देता, पर मेरे आका तैमूर ने मुझ पर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं तेरी गर्दन काट दूं, लिहाजा मैं तेरी गर्दन काटता हूँ। इसके साथ ही नूरुद्दीन ने अपनी तलवार बुलंद करके गिराई और ग्रैंड मास्टर की उसने गर्दन काट कर रख दी। ग्रैंड मास्टर के नूरुद्दीन के हाथों मारे जाने पर वेटलट के लश्कर में एक वहशत अमेज सा सुकून तारी हो गया। जब नूरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहा था, इस मौका पर खेमों के पास खड़ी नायसा ने अपने बाप यू ग्रीन को मुखातिब करके कहा, ए मेरे बाप, इस नूरुद्दीन ने तो ग्रैंड मास्टर को बड़ी आसानी के साथ तहे तेज करके रख दिया है। यू ग्रीन मुस्कुराकर बोला, ए मेरी बेटी, तूने नूरुद्दीन की सलाहियतों का ग्रैंड मास्टर के मुकाबले में गलत नज़ारा लगाया था, जबकि मुझे उम्मीद थी कि नूरुद्दीन ग्रैंड मास्टर को ज़ेर कर लेगा। देखो बेटी, नूरुद्दीन अपने लश्कर की तरफ आ रहा है, आओ इसे इस फतह पर मुबारकबाद दे। नूरुद्दीन उस जगह आकर रुका जहाँ कतलक और एटको खड़े हुए थे। एटको और कतलक पहले नूरुद्दीन को गले लगाकर मिले, फिर इस फतह पर मुबारकबाद दी। इतनी देर तक यू ग्रीन भी करीब आया तो नूरुद्दीन से गले मिलते हुए इसने मुबारकबाद दी। फिर हसीन नायसा नूरुद्दीन के सामने आई और अपनी रस भरी आवाज में इसने कहा, ए अमीर, ग्रैंड मास्टर जैसे तेगज़न को ज़ेर करने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। नूरुद्दीन ने नायसा को कोई जवाब न दिया और इंतहाई संजीदा अंदाज में इसकी गर्दन झुक गई थी। नायसा को कतई नूरुद्दीन से ऐसे रवैये की उम्मीद न थी। नूरुद्दीन का जवाब न देने ने इससे मायूस किया गया और वो नाउमीदी सी होकर पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। दुश्मन चूंकि अपनी सफेद दुरुस्त करने लगे थे, लिहाजा यूगरी और नायसा लश्कर के पीछे पड़ाव की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद दुश्मन के लश्कर में तबले जंग बजने लगे थे और फिर वेटुलट का लश्कर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा था। इस मौका पर एडकुर कतलक ने राजदारी के साथ इनसे सरगोशी करते हुए कुछ समझाया, फिर अपने लश्कर के साथ जामने जा खड़ा हुआ। वेटुलट का लश्कर एक खास धुन में तबले जंग बजाता हुआ जब काफी आगे बढ़ाया तो नूरुद्दीन ने इस मौका पर अपनी तलवार फिजा में बुलंद की।
بس اس کا تلوار فضا میں بلند ہونا تھا کہ نور الدین ایڈکو اور قتلک کے لشکر کی طرف سے صلیبی لشکر پر ایسی تیز اور ہولناک تیروں کی بارش کی گئی اور اس طوفانی تیر اندازی سے ویٹولٹ کے لشکر کی اگلی کئی صفیں ادھر کر رہ گئی۔ ویٹولٹ اور اس کے جنرل تیر اندازی کے باعث جو لشکری مارے گئے تھے ان کے جگہ اور لا کر اگلی صفیں دوبارہ منظم کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ نور الدین نے اپنے متحدہ لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ اب سامنے کی طرف سے نور الدین بائیں طرف سے ایڈکو اور دائیں جانب سے قتلک حملہ آور ہوا۔ سامنے کی طرف سے نور الدین نے ایسے زور کا حملہ کیا جیسے کسی نادیدہ سماوی بلا یا تیرگی کے کسی محرم راز نے حملہ آور ہو کر ایک طوفان برپا کر دیا ہو۔ نور الدین کے اس حملے سے صلیبیوں کی حالت بھولتے نام، ٹوٹتے رشتوں، بھاگتی شام، ڈوبتے چاند اور ٹوٹتی لہروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ نور الدین کے اس حملے نے ویٹولٹ کی نگاہوں میں ٹوٹے آئینے اور خواہشوں کے آبگینے توڑ کر رکھ دیے تھے۔ دائیں طرف سے ایڈکو نے بڑی بے باکی کے ساتھ حملہ آور ہو کر صلیبیوں پر ڈرونی سرگوشیاں شروع کر دی۔ قتلک کا حملہ بھی قابل دید تھا۔ وہ تکبیریں بلند کرتا ہوا اس انداز میں حملہ ہوا جیسے سوکھے پتوں سے کھیلتی اور شور کرتی ہوئی طوفانی ہوائیں کسی روح کی چیخوں اور دل کی جلن میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ ویٹولٹ نے لشکر کو سنبھالا لیکن اتنی دیر تک نور الدین ایڈکو اور قتلک نے اس کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب جس طرف سے بھی نور الدین ایڈکو اور قتلک حملہ آور ہو رہے تھے ویٹولٹ کے لشکر کی صفوں کی کیفیت اس بوسیدہ فصیل جیسی ہوتی چلی گئی جسے جگہ جگہ سے توڑ کر اس میں شکاف کر دیے گئے ہوں۔ یورپ والوں کو تینوں طرف سے قتل عام شروع ہو گیا تھا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بلوط کے جنگل میں اچانک آگ لگ گئی ہو۔ ویٹولٹ اور اس کا لشکر زیادہ دیر تک نور الدین ایڈکو اور قتلک کے حملوں کا دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ پہلے ویٹولٹ کے لشکر میں بدنظمی کے آثار نمودار ہوئے، پھر اگلی صفیں درہم برہم ہو کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگی۔ یہ حالت دیکھتے ویٹولٹ نے خود اپنے لشکر کو بھاگ کر جان بچانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب بھاگنے میں ویٹولٹ اور اس کے جرنیل سب سے آگے تھے اور ان کے لشکر ان کے پیچھے تھے۔ نور الدین ایڈکو اور قتلک نے ویٹولٹ کا تعاقب کیا اور یہ تعاقب ویٹولٹ کے علاقوں کے پولینڈ کے سرحدوں تک جاری رہا۔ اس طویل تعاقب کے دوران اسمالسک اور گلیشیا کے بڑے بڑے جرنیل اور نواب مارے گئے۔ ویٹولٹ کا 2/3 لشکر تہہ تیغ کر دیا گیا اور پولینڈ تک اس کی مملکت کو روند کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد نور الدین ایڈکو اور قتلک لوٹے اور دشمن جو مال متاع چھوڑ کر بھاگا تھا وہ سمیٹنے لگے۔ فلسطین سے باہر اہل یورپ کو صلیبی جنگوں کی یہ بدترین شکست تھی۔